Hello students, welcome to economic class. This is Arvind Kumar Pandey, and in this video children today we are going to discuss circular flow in a three-sector economy, circular flow in a four-sector economy, then significance of circular flow, leakages and ejections. These are the 4 points, and with these 4 points children we have to come at the end of the chapter. As you know that in this video we are discussing chapter number 1, 12th class, CBSE Economics, circular flow of income. In the previous video, we have already covered more than 75% of the chapter. Here we have 5 points to be discussed today in this video. So children, I hope you are enjoying the previous video and the topic will be clear till now. Let's see in this video what I am going to teach you. Children, first you see circular flow in a three-sector economy. Children, in the previous video, if you have remember, I have told you that there are 4 sectors in the economy: household, firms, government, and rest of the world. The rest of the world is also known as foreign sector. These are the 4 sectors of the economy. In the previous video, we have already discussed that in whatever manner circular flow of two-sector economy works, how firms are dependent on the household for factor services, and how consumers, or we can say household, are dependent on firms for goods and services. Household also depend on the firm for the income, and firms are dependent on the household for the consumption expenditure. These were the interdependence between the household and firms. After that, I told you the introduction of financial market. Children, financial market regularized the saving and borrowing, right? Whatever surplus money left to the household after the consumption expenditure, they save that money in the bank, and it may be that firms may have some plan in the future for expansion their business, and they have no sufficient capital, so they can borrow the capital or money from the bank, right? So banking when bank, or we can say when financial market introduced between household and firms, so it starts channelizing the saving and borrowing. Here we are going to discuss circular flow in a three-sector economy. So we are going to include household sector, firm sector, and government sector. How the economy perform and what are the relations between household and government, and what are the relations between firms and government. Let me tell you. So children, let us discuss. But children, before discussing the three-sector economy, you need to watch my previous video where I have told you how the two-sector simple economy works and how the two-sector economy with financial market works. So as the first point written on board, this is the three-sector economy. So here we are going to see, I am going to clear you the interrelation between the three-sector economy. So first of all, let's take household, next firms, right? It is government, and this is financial market. Financial market which is in bank. So the relation between household and firm will remain same. You already know that household provide factor services, and consumption expenditure. Okay, this is the flow
factor services and consumption expenditure from household to firms, and another flow is from home to household, right? There is a first flow from household to firm. Household से firm की तरफ flow है factor services का. In the previous video I have already told you that factor services are land, labor, capital and enterprise, and you already know these are the basic requirements for the production, for start of production. So firms hire these factor services from households. Because of that there is a flow of factor services from household to firms. And when household purchase these goods and services from the firms, so there is a flow of consumption expenditure from household to firms. तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब ये चीज़ मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जब हाउस होल्ड या कंज्यूमर मार्केट से कोई सामान परचेज करता है और उसको कंज्यूम, तो उस प्रोसेस को कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, बिकॉज द कंज्यूमर इज परचेजिंग द गुड्स फ्रॉम द मार्केट फॉर कंजम्पशन पर्पसेस, राइट? द ऑब्जेक्टिव ऑफ परचेजिंग द कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द मार्केट इज कंज्यूमिंग. So the expenditure which is done by the consumer for consumption purposes are called consumption expenditure. And another is flow. There is a flow from firms to household. So firms provide goods and services, and also factor income, right? Factor income already know. Rent, royalty, wages, salary, interest and enterprise, and capital. These are the factor income provided by the firms to the household. Firm household को factor income provide करता है, and firms ने जो goods और services को produce किया है वो सेल कर देता है household के पास. तो पहले आप देख सकते हो, ये कल हमने आपको पहले ही डिस्कस कर लिया था. अच्छा, ये और है कि हाउस होल्ड और फर्म के बीच में किस तरीके से चलता है. हाउस होल्ड के पास जो सरप्लस अमाउंट है वो फाइनेंशियल मार्केट में सेविंग कर सकता है और जरूरत पड़ने पर वो बोरो भी कर सकता है, राइट? इन द सिमिलर वे फर्म भी अपने अमाउंट को सेव कर सकता है और जरूरत पड़ने पर वो वहां से बोरो भी कर सकता है, राइट? ये जो फ्लो है ये हम कल बात कर चुके हैं. आज हम लोग बात करते हैं थ्री सेक्टर इकोनॉमी. हाउस होल्ड फर्स्ट सेक्टर, फर्म्स सेकंड सेक्टर एंड गवर्नमेंट इज थर्ड सेक्टर. सो देयर आर द थ्री सेक्टर: हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर. लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन इज बिटवीन हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट. यू कैन सी टुडे गवर्नमेंट income flows from government to household as a factor income, right? Government provides salary for the employees, those who work for the government. गवर्नमेंट के लिए जो एम्प्लॉय काम करते हैं जिन्हें हम गवर्नमेंट सर्वेंट भी कहते हैं, तो उन गवर्नमेंट सर्वेंट को गवर्नमेंट जो है पेमेंट करती है उसे हम कहते हैं फैक्टर पेमेंट्स. Children, handwriting is not good but you can adjust it. फैक्टर पेमेंट है. चिल्ड्रन गवर्नमेंट जो है ओल्ड एज पेंशंस देती है. जिनकी एज 60 ईयर से ज़्यादा हो गई है, 65 ईयर से ज़्यादा की हो गई है, तो गवर्नमेंट उनको पेंशन देती है. ठीक है, गवर्नमेंट स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देती है. तो इसे हम कहते हैं यूनिलेटरल ट्रांसफर, या इसको हम कहते हैं ट्रांसफर पेमेंट्स. यानी वो इनकम या वो पेमेंट जो आपको बिना किसी काम को बिना कोई काम किए मिली. ठीक है, वो यूनिलेटरल ट्रांसफर इसको कहते हैं. इसको हम आगे भी आपको बताएंगे. यहाँ बस मैं आपको बताता हूँ कि ट्रांसफर इनकम है. ठीक है, ट्रांसफर पेमेंट आप इसको कह सकते हो. तो गवर्नमेंट जो है हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट करती है और ट्रांसफर पेमेंट करती है. ठीक है, और गवर्नमेंट से हाउस होल्ड से गवर्नमेंट के पास क्या आता है? हाउस होल्ड गवर्नमेंट को क्या देता है? डायरेक्ट टैक्स. ठीक है, हम हाउस होल्ड हैं, हमारी इनकम होती है,
गवर्नमेंट उस इनकम पर टैक्स लगाती है जिसे हम कहते हैं इनकम टैक्स, एंड हाउस होल्ड पे डायरेक्ट टैक्स जिसे हम डायरेक्ट कहते हैं टू द गवर्नमेंट. So this is the relation between household and government. Let's see what kind of relation is between government and firms. गवर्नमेंट और फर्म के बीच में children as household purchase goods and services from the firms, government also purchase goods and services from the firms. ठीक है ना, गवर्नमेंट भी गुड्स को परचेज करती है अपने पर्सनल यूज के लिए. उसका पर्सनल यूज है वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी के वेलफेयर के लिए वो गुड्स और सर्विस को परचेज करती है और अपने पीपल को डिस्ट्रीब्यूट करती है. जैसे मिड डे मील हो गया, ठीक है, डिफेंस सर्विसेज हो गए, जो आर्मी के लोग हैं वो काम करते हैं, उनको ड्रेस है, फूड है और बहुत सारी फैसिलिटी गवर्नमेंट देती है. तो इस तरीके के लिए वो परचेज करती है. तो गवर्नमेंट की तरफ से फर्म के पास आता है पेमेंट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. गवर्नमेंट ने जो गुड्स और सर्विसेज फर्म से परचेज किया है उसके लिए गवर्नमेंट ने पे किया. गवर्नमेंट फर्म को सब्सिडी भी प्रोवाइड कराती है, जैसे कि आपने देखा होगा एलपीजी सब्सिडी, ठीक है ना. फर्म जो है गवर्नमेंट को देता है इनडायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स आपको पता हो गया है. इनडायरेक्ट टैक्स क्या है आजकल? GST, goods and services tax. So children, these are the three sector economy. अच्छा, गवर्नमेंट के पास जो एक्स्ट्रा मनी है गवर्नमेंट अपने पैसे को सेव भी कर सकती है और गवर्नमेंट बैंक से बोरो भी कर सकती है, ठीक है ना. चिल्ड्रन, यू ऑलरेडी नो गवर्नमेंट भी एज अ हाउस होल्ड और फर्म की तरह गवर्नमेंट भी मनी को बोरो करती है. सो चिल्ड्रन, दीज आर द सर्कुलर फ्लो ऑफ थ्री सेक्टर इकोनॉमी. इसमें थ्री सेक्टर हो गए, हाउस होल्ड हो गया, फर्म हो गया, गवर्नमेंट हो गया, विद फिनेंशियल मार्केट. फिनेंशियल मार्केट का आना बहुत जरूरी है क्योंकि फिनेंशियल मार्केट जो है वो चैनलाइज करती है किसको? सेविंग एंड बारोइंग, ठीक है. सेविंग एंड बारोइंग को एडजस्ट करके गवर्नमेंट बैंक क्या करता है? इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है ना, जिससे कि हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ हो सके जितना. लेकिन सेविंग और बारोइंग को चैनलाइज करना जरूरी है और इन दोनों का इक्वल होना जरूरी है. चिल्ड्रन, आई होप कि आपको थ्री सेक्टर इकोनॉमी बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा. सो चिल्ड्रन, दिस पॉइंट हैज बीन क्लियर. लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट, सर्कुलर फ्लो इन फोर सेक्टर इकोनॉमी. फोर सेक्टर इकोनॉमी में चिल्ड्रन हम बात करेंगे किस तरीके से इनकम का फ्लो होता है हमारी इकोनॉमी में, कहां से कहां फ्लो जाता है. तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ये तो जो थ्री सेक्टर इकोनॉमी वो एज इट इज रहेगी, ठीक है. इनके बीच में जो आपस में ट्रांजैक्शन हो रहा है वो एज इट इज रहेगा. हम इसमें क्या करते हैं, एक और सेक्टर को ले आते हैं जिससे हम कहते हैं फॉरेन सेक्टर. फॉरेन सेक्टर, ठीक स्टूडेंट, ये फॉरेन सेक्टर को यहां पर ले आए. और फॉरेन सेक्टर थोड़ा इसको हम क्लोज कर देते हैं. ये फॉरेन सेक्टर और हाउस होल्ड के बीच में चिल्ड्रन किस तरीके का ट्रांजैक्शन होता है, चलो हम उसको देख लेते हैं. सो चिल्ड्रन, फर्स्ट जो ट्रांजैक्शन यहाँ पे है वो है फैक्टर पेमेंट, फैक्टर एंड ट्रांसफर पेमेंट. ट्रांसफर पेमेंट्स चिल्ड्रन, जो हाउस होल्ड है जैसे मैं हूं और आप हैं, तो हम लोग अपने इंडिया में भी काम करते हैं और हमें उसके बदले में इनकम मिलती है. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया के रहने वाले हैं लेकिन फॉरेन कंट्रीज में जाके वहाँ पे काम कर रहे हैं. द पीपल हु आर लिविंग आउटसाइड द कंट्री एंड दे आर प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज. वो जिस कंट्री में हैं, जहाँ भी हैं, वो काम कर रहे हैं. तो वहाँ काम करने वाले लोग जो काम करते हैं उनको पैसा मिलता है, तो वो पैसा इंडिया में भेजते हैं. तो वो आ गया ट्रांसफर फैक्टर इनकम होगी जो काम के बदले मिलती है. लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज के बदले में जो आपको मिलता है, रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, रॉयल्टी, ठीक है. अच्छा,
फॉरेन सेक्टर से हाउस होल्ड को ट्रांसफर पेमेंट भी मिलता है। ट्रांसफर पेमेंट का मतलब हो गया जैसे यूनिलेटरल ट्रांसफर, जैसे गिफ्ट हो गया, ग्रांट हो गया, डोनेशन हो गया, हेल्प हो गई। जो हमारी कंट्री में कोई कैलेमिटी आ जाती है तो हम देखा होगा कि बहुत सारा जो ग्रांट है दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में आता है, हेल्प करते हैं वो हमारी कंट्री को। तो एक तो ये फ्लो हो गया, ठीक है। दूसरा जो फ्लो हो गया, हमारी कंट्री में जो रहने वाले लोग हैं वो इंपोर्ट करते हैं। हम विदेशों से सामान मंगाते हैं तो उसके लिए इंपोर्ट कहते हैं। तो ये हो गया इंपोर्ट पेमेंट्स, इंपोर्ट पेमेंट्स, ठीक है ना। जो सामान हम विदेशी कंपनियों से मंगवाएंगे, दूसरी कंट्री से मंगवाएंगे तो उसके लिए हमें पेमेंट देना पड़ेगा। देखो जो इनकम है वो हमारी मतलब हाउस होल्ड से फॉरेन सेक्टर में जा रही है। तो चलिए ये तो हो गया फ्लो ऑफ इनकम बिटवीन हाउस होल्ड एंड फॉरेन सेक्टर। अब हम फॉर्म और फॉरेन सेक्टर के बीच में देख लेते हैं तो क्या क्या होता है। तो देखो जिस तरीके से हाउस होल्ड फॉरेन सेक्टर से इंपोर्ट करता है, हाउस होल्ड भी गुड्स और सर्विसेज का इंपोर्ट कर सकता है। तो यहां पर लिख सकते हो इंपोर्ट्स ऑफ, इंपोर्ट्स पेमेंट कह लो, इंपोर्ट्स पेमेंट, ठीक है ना। इंपोर्ट जो है गुड्स का भी हो सकता है और सर्विसेज का भी हो सकता है। तो इनकम और पेमेंट क्या है, हमने ये इनकम इधर जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, हमने दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट किया है, जो फॉर्म है ये अपने सामान को दूसरी कंट्री में भी सेल करते हैं, उसे कहते हैं एक्सपोर्ट। तो ये हो गया हमारा एक्सपोर्ट पेमेंट्स। आई होप चिल्ड्रन ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो जब हम टू सेक्टर की बात करते हैं तो हाउस होल्ड को लेते हैं, फॉर्म्स को लेते हैं, इनके बीच में जो फ्लो होता है, ठीक। जब हम टू सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट तो हाउस होल्ड और फॉर्म्स और हम फाइनेंशियल मार्केट को साथ में लेते हैं। जब थ्री सेक्टर इकोनॉमी की बात करते हैं तो हाउस होल्ड है, फॉर्म्स है, गवर्नमेंट है विद फाइनेंशियल मार्केट। ये पूरा हो गया चिल्ड्रन आपका फोर सेक्टर इकोनॉमी, जिसमें सारे सेक्टर आ गए हैं। फर्स्ट सेक्टर हाउस होल्ड, सेकेंड सेक्टर फॉर्म, थर्ड गवर्नमेंट एंड फोर्थ सेक्टर इज फॉरेन सेक्टर। तो ये चिल्ड्रन टोटल ट्रांजेक्शन है। आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आता है तो आप इस वीडियो को 1-2-3 बार और देख लेना और आप अपनी बुक को भी 1-2 बार स्टडी कर सकते हैं तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा। सो चिल्ड्रन लेट अस डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो। ये सर्कुलर फ्लो हमने अभी स्टडी किया है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाई डू वी नीड टू स्टडी सर्कुलर फ्लो, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस, इससे हमें क्या क्या फायदे हैं, क्या हमें पता चलता है। So children, give me 1 minute. Let me erase it. I will take only 1 minute. Children, first significance is mutual interdependence. Mutual interdependence. Children, you have seen that there are four sectors: households, firms, right, government, and rest of the foreign sector. These are the four sectors. So, in whatever manner they are interdependent, you already know. Firms depend on household for factor services, government also depend on household for factor services, rest of the world also depend on household for factor services. Household depend on income for firms, government and rest of the world. Household depend on consumption expenditure on firm, government and rest of the world, right? So these are the interdependence of different sector to each other. After studying the circular flow of income, we can understand very well in whatever manner and what manner these sectors are interdependent. कि एक सेक्टर दूसरे सेक्टर पर डिपेंड कैसे है और क्यों है। You already know चिल्ड्रन, अगर हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज फर्म्स को प्रोवाइड नहीं करेगा तो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो इनकम जनरेट नहीं होगी।
जब इनकम जनरेट नहीं होगी तो कंजम्पशन भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, कि मैं मार्केट से जाकर गुड्स और सर्विसेज को परचेज हम तभी कर पाएंगे जब हमारी कुछ इनकम हो। तो प्रोडक्शन तो हो नहीं रहा है तो इनकम भी जनरेट नहीं होगी। When income will not generate, income will not be distributed। जब इनकम जनरेट ही नहीं हो रही है तो इस डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी तो कंजम्पशन नहीं होगा, कंजम्पशन नहीं होगा तो फिर इकोनॉमी हमारी जो है क्रैश हो जाएगी, इनको इकोनॉमी का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट जिसमें हमने देखा इंटरडिपेंडेंस। नेक्स्ट पॉइंट चिल्ड्रन, इक्विलिब्रियम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम चिल्ड्रन? यू हैव ऑलरेडी स्टडीड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वल in mathematics, right? But here I am not going to teach you mathematics. Equilibrium. So children, here equilibrium means demand equal to supply, saving equal to borrowing, राइट, या सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं आप। राइट, व्हेनेवर वी आर स्टडीइंग इक्विलिब्रियम, हमारी जो पूरी इकोनॉमी है वो दो चीजों की वजह से चलती है, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, अगर हम डिमांड कर रहे हैं तो सप्लाई होनी चाहिए, सप्लाई है तो डिमांड होनी चाहिए। अगर डिमांड है सप्लाई नहीं है तो भी इकोनॉमी नहीं चलेगी। ठीक है, और सप्लाई है लेकिन डिमांड नहीं है तो भी जो हमारी इकोनॉमी नहीं चलेगी। तो हमें ये भी पता चलता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को स्टडी करने के बाद कि हमारी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम है कि नहीं है। ऐसी कंडीशन तो नहीं है कि जो है डिमांड इज मोर देन सप्लाई। ठीक है ना, हम डिमांड ज्यादा करें लेकिन सप्लाई कम है। 100 यूनिट्स, 100 लोग मतलब 100 यूनिट्स हम खरीदना चाहते हैं। मान लो मैं टीवी खरीदना चाहता हूँ 100 यूनिट्स, लेकिन मार्केट में सिर्फ सप्लाई होगी 10 यूनिट्स की। ठीक है ना, तो फिर क्या होगा, टीवी की जो प्राइस है वो इंक्रीज होने लगेगी। तो ये जो है डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन है। तो हमें पता चल जाता है कि जो हमारी इकोनॉमी है वो इक्विलिब्रियम में है या डिसइक्विलिब्रियम में है। तो ये हो गया डिमांड एंड सप्लाई की बात। इसमें हम चले एक्चुअली हम एग्रीगेट डिमांड कहेंगे और एग्रीगेट सप्लाई कहेंगे। हम मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी कर रहे हैं, पर शॉर्ट में हमने आपको यहाँ पर सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट, सेविंग एंड बोरोइंग या सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। चिल्ड्रन, अगर हमारी इनकम हो रही है और हम उस सारी इनकम को सेव कर रहे हैं, मुझे जो है सैलरी मिली 10,000 और मैंने वो 10,000 ले जाके घर पे रख लिया, मैं मार्केट में जाके कोई भी सामान परचेज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना, और मेरे जैसे बहुत सारे कस्टमर हैं, सबने ये डिसाइड कर लिया कि उनको जो सैलरी मिली, जो इनकम मिली है वो उसको स्पेंड नहीं करेंगे। तो फिर क्या होगा कि जो प्रोड्यूसर हैं, जो लोग अपना सामान मार्केट में बैठे हैं बेचने के लिए, उनका सामान सेल नहीं होगा। जब वो सामान उनका नहीं बिकेगा तो फिर वो अगली बार सामान बनाएंगे ही नहीं। जब वो सामान बनाएंगे नहीं तो फिर वो फैक्टर ऑफ सर्विसेज जो है, फैक्टर सर्विस वो हायर नहीं करेंगे। ठीक है, तो इनकम जनरेट नहीं होगी। जब इनकम जनरेट नहीं होगी तो लोग कंजम्पशन कैसे करेंगे? समझ में आ गया ना? तो सेविंग जरूरी है लेकिन बहुत ज्यादा सेविंग भी जरूरी है, दोनों का इक्वल होना जरूरी, सेविंग और इन्वेस्टमेंट। अच्छा, ये तो हो गई सेविंग की बात, ये हो गई इन्वेस्टमेंट की बात कि मैं बिजनेसमैन हूँ और मैंने एक बड़ी सी दुकान खोली, मतलब डिपार्टमेंटल स्टोर खोला। ठीक है, बड़ा शोरूम खोला, उसमें खूब सारा सामान ला के रख लिया, लेकिन अब कोई सामान नहीं बिक रहा है मेरा। तो मैंने क्या, इन्वेस्टमेंट तो मैंने बहुत ज्यादा कर दिया, लेकिन हमारी जो कमोडिटी की डिमांड है वो बिल्कुल जीरो है। तो ये फिर बेकार हो गया, मैं इन्वेस्टमेंट करके बैठा हूँ, कोई डिमांड नहीं हो रही है। तो चलिए, फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी या सेक्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की स्टडी करने के बाद हम ये पता लगा पाते हैं कि हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। नेक्स्ट चिल्ड्रन हम बात करते हैं एक और पॉइंट चिल्ड्रन, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, क्योंकि उस पॉइंट बताने से पहले ये दो पॉइंट जो मैंने और लिख रखे हैं, फर्स्ट लीकेजेस एंड इंजेक्शंस, इसके बारे में पहले बात कर लें। उससे पहले मैं एक और पॉइंट जो बता देता हूँ। चलिए, इसमें हम बात करते हैं, इसमें एक और चीज है जो हम एस्टिमेट कर लेते हैं, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, चलिए ऑलरेडी नेशनल इनकम का मतलब है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो होता है फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन इकोनॉमी इन अ गिवन फाइनेंशियल ईयर। एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में एक कंट्री के अंदर जितने भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है उनकी जो मॉनेटरी वैल्यू होती है उसी को हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। तो चलिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने के हमारे पास 3 मेथड हैं जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। एक तो हो गया प्रोडक्ट मेथड, ठीक है, फिर हो गया इनकम मेथड, नेक्स्ट हो गया एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो हम नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को स्टडी करने के बाद हमारे पास 3 मेथड आते हैं 1, 2 एंड 3। सो वी कैन यूज एनी मेथड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। आइदर यू कैन यूज प्रोडक्ट मेथड और इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, बट इनकम विल रिमेन सेम। चाहे आप किसी मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करो, जो मॉनेटरी वैल्यू आएगी, जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगा वो आपका सेम रहेगा। क्यों होगा? क्योंकि प्रोडक्ट मेथड यहाँ हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, हमने प्रोडक्शन किया तो वहां पर इनकम जनरेट हुई 100 करोड़ रुपीस की। ये 100 करोड़ रुपीस की जो इनकम जनरेट हुई है वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो लोग 100 करोड़ मिल गए। अब ये 100 करोड़ रुपए लोग लेकर जाएंगे और इसको मार्केट में सामान खरीदेंगे, खर्च कर देंगे। तो देखो जो इनकम जनरेट हुई, जितनी इनकम जनरेट हुई थी उतनी ही हमने डिस्ट्रीब्यूट की और उतना ही कंजम्पशन हुआ। तो इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। चलिए आप यहाँ देखो, यहाँ पर लिखोगे आप इनकम जनरेटेड इक्वल टू इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। राइट, जितनी इनकम जनरेट हुई वो इक्वल है इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो इनकम डिस्ट्रीब्यूट हुई वही कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया। तो अगर 100 करोड़ रुपीस इनकम जनरेट हुई थी तो मैंने 100 करोड़ रुपीस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और वही 100 करोड़ रुपीस को लोग लेकर गए मार्केट में और गुड्स की डिमांड की, गुड्स और सर्विसेज की डिमांड की। तो चलिए आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एक पॉइंट और है जो इससे क्लियर हो जाएगा, मैं आपको इसमें बता देता हूँ। तो चलिए उससे पहले हम आपसे बात करते हैं ये जो लास्ट के 2 पॉइंट हैं, लीकेजेस एंड इंजेक्शंस। चलिए हम बात करते हैं इसके बारे में। इसको बात करने से पहले चलिए आपको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, वो आप देखिए। पहले मैं आपको बता दूं कि इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, लीकेज का। पहले इंजेक्शन पढ़ेंगे फिर लीकेज पढ़ेंगे। चलिए तो चलिए इंजेक्शन का मतलब होता है इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम into the economy, into the circular flow, शॉर्ट में आप कहोगे इकोनॉमी। ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए चलिए ये तो हो गया हाउस होल्ड, ये हो गया फॉर्म्स, ठीक है ना। आपने देखा कि फॉर्म को प्रोडक्शन करना है तो हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विसेज लेगा और वो फैक्ट उसके बदले में इनको गुड्स और सर्विसेज दे देगा, ठीक है ना। हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड किया तो फॉर्म ने इनको इनकम दी, ठीक है ना। इनकम जनरेट हुई, तो इनकम जो जनरेट हुई, मान लो हमने यहाँ पर मान लिया कि 10 रुपीज जो है जनरेट हुआ, तो जो 10 रुपीज जनरेट हुआ, ठीक है ना। यहाँ समझ में आ गया होगा कि जब हाउस होल्ड ने फॉर्म के लिए काम किया, ठीक है ना, उसने लैंड दिया, उसने वेजेस दिया, कैपिटल दिया, एंटरप्राइज दिया, किसने? हाउस होल्ड ने फॉर्म को जब दिया तो वहां पर इनकम जनरेट हुई। वो इनकम फॉर्म ने
हाउस होल्ड को दे दिया। हाउस होल्ड क्या करेगा, यही इनकम इसके पास आ गई, ये इनकम लेकर जाएगा मार्केट में 10 रुपीज लेकर जाएगा और वो उसकी डिमांड करेगा, ठीक है ना। फिर ये 10 रुपीज फॉर्म के पास आ जाएगा, फॉर्म इस 10 रुपीज को यूज करके फिर से प्रोडक्शन करेगा, गुड्स और सर्विसेज बनाएगा, इनकम जनरेट होगी, वो इनकम फिर से हाउस होल्ड के पास चली जाएगी, हाउस होल्ड फिर से जाके सामान खरीदेगा, डिमांड करेगा फिर से। तो चलिए ये चलता रहेगा और चलता रहेगा। तो अभी आप देखो इस टू सेक्टर इकोनॉमी में 10 रुपीज जो है सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है ना। ये हमारा जो टू सेक्टर इकोनॉमी है, हाउस होल्ड फॉर्म है, इसमें 10 रुपए जो है वो घूम रहे हैं। वो 10 रुपए पहले हाउस होल्ड के पास गए एज ए इनकम, फिर वो फॉर्म के पास आ गए एज ए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर वो हाउस होल्ड के पास ये 10 रुपीज चल रहे हैं। तो हमारी इकोनॉमी में भी 10 रुपीज चल रहे हैं। अब यहाँ पर क्या इंजेक्शन हो गया, मैंने क्या किया, मैं एक्सटर्नल सेक्टर से एक्सटर्नल मनी कह लो, ठीक है ना, या बारोइंग कह लो, ठीक है ना। मैं एक्सटर्नल सोर्स से, एक्सटर्नल सोर्स क्या है हमारा, एफडीआई है, ठीक है ना। तो हमारी कंट्री में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ गया, दूसरी कंट्री के लोग हमारी इकोनॉमी में आए और उन्होंने पैसा लगा दिया, ठीक है। तो एक्सटर्नल सोर्स से हम कुछ पैसे गए। तो अब देखो ये जो हमारे पास पहले 10 रुपए थे, हमें जो है 5 रुपीज और मिल गए। अब हमारे पास हो गए टोटल 15 रुपीज। अब मैं क्या करूंगा कि फॉर्म के पास जाऊंगा और 15 रुपीज की मैं डिमांड करूंगा। तो देखो इकोनॉमी में हमारे 10 रुपीज थे, ये एक्सटर्नल सोर्सेज से हम 5 रुपए और ले आए, ठीक है ना। तो अब हमारी इकोनॉमी में क्या होगा कि डिमांड पहले 10 रुपीज की थी, अब 15 रुपीज की डिमांड हो जाएगी। तो हमारी इकोनॉमी क्या करेगी, हमारी इकोनॉमी ग्रो होगी। ये जो फॉर्म था पहले वो 10 रुपीज का सामान बना रहा था, अब वो बनाएगा 15 रुपीज का। जब वो सामान 15 रुपीज का बनाएगा तो इनकम भी 15 रुपीज की जनरेट होगी, तो यहाँ पे 5 रुपीज इंक्रीज हो जाएगा, इसके पास ये 15 रुपीज जाएगा, फिर ये 15 रुपीज हमारे सर्कुलर फ्लो में चलता रहेगा और चलता रहेगा। तो इसे कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारी इकोनॉमी ग्रो हो रही है, हमारी इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है, इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट। समझ में आ गया होगा आपको। तो आपको समझ में आ गया होगा इंजेक्शन का मतलब होता है इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम इनटू द सर्कुलर फ्लो, ठीक है। ये एक सर्कुलर फ्लो था, इसमें है इंट्रोडक्शन हुआ है इसका, न्यू इनकम का, नई मनी कहां से, एक्सटर्नल सोर्स से आई है। चलिए इसका अपोजिट होता है विथड्रॉल, जिसे हम कहते हैं लीकेज, वो हम आपको बता दे हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूं सब। ठीक है, चलिए लीकेज की बात करते हैं। लीकेज का मतलब चलिए होता है विथड्रॉल ऑफ मनी, विथड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो, फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो या आप इकोनॉमी कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी से विथड्रॉल हो गया, निकाल लिया गया, ठीक है, वापस चला गया क्या, कुछ मनी। तो जैसा मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल बताया कि 10 रुपीज हमारी इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रहे हैं, ठीक है ना। ये यहाँ पे नहीं रहेगा, ये यहाँ पे रहेगा कि हाउस होल्ड जो फॉर्म है, फॉर्म ने हाउस होल्ड को 10 रुपए दिए, ठीक है ना। तो हाउस होल्ड ने क्या किया, ये 10 रुपए में से 2 रुपीज सेव कर लिया, लेकिन सेव इसने बैंक में नहीं किया है, इसने ये 2 रुपए निकालकर और अपने घर पे रख लिया, ठीक है ना। ये उसके घर पे रखे हुए हैं, बक्से में, तिजोरी में, सेफ में, कहीं भी रख सकते। अब जो है 8 रुपीज बचे इसके पास। यहां से 10 रुपए चले थे, लेकिन हाउस होल्ड ने 2 रुपीज को सेव कर दिया। अब वो क्या करेगा कि 2 रुपए उसने बचा लिया, अब वो 8 रुपीज की डिमांड करेगा, ठीक है। फॉर्म के पास जाएगा, कहेगा तुम्हें 8 रुपीज का सामान दो। फॉर्म क्या करेगा, इसने सामान बनाया तो 10 रुपए का, लेकिन हम डिमांड करें 8 रुपीज का, तो इसके पास क्या होगा कि अब 2 रुपीज का जो सामान था वो अनसोल्ड रहेगा, इसका स्टॉक इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है ना। तो इसका सामान बच जाएगा, वो सेल नहीं होगा। तो फिर फॉर्म क्या करेगा, अगली बार अगले फ्लो में वो क्या करेगा, वो 8 रुपए का सामान बनाएगा।
तो ये क्या हो गया, ये जो है अपने प्रोडक्शन को कम करेगा। जब ये अपने प्रोडक्शन को कम करेगा तो ये फैक्टर सर्विसेज भी कम यूज करेगा, तो किसी की जॉब जाएगी, किसी को हायर किसी को नौकरी से निकालेगा, लेबर को कम करेगा, या हो सकता है कि वो वेजेस कम कर दे, इन्वेस्टमेंट कम करे, इंटरेस्ट कम करे। तो इस तरीके से क्या होगा कि ये जो है हमारी इकोनॉमी जो है क्या होगी, श्रिंक होगी। हमारी इकोनॉमी वो तो ग्रो हो रही थी, ये क्या ग्रो का अपोजिट, हमारी इकोनॉमी जो है डिप्रेशन में आएगी, रिसेशन में आएगी। तो ये किसी भी इकोनॉमी के लिए जो लीकेज होता है वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, लेकिन इंजेक्शन इकोनॉमी के लिए हमेशा अच्छा होता है। तो चिल्ड्रन, विद दिस पॉइंट्स वी हैव कवर्ड चैप्टर नंबर 1। आज हमने चैप्टर नंबर 1 मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसमें 3 वीडियो मैंने बनाए हैं। वीडियो नंबर 1 और 2 ऑलरेडी अपलोडेड हो गए हैं। आज ये वीडियो आपको मिलेगा, आप उसको देखिए, वॉच करिए। आई होप कि आपको इकोनॉमिक्स को स्टडी करने में बहुत अच्छा लग रहा होगा, आपको समझ में आएगा चिल्ड्रन। तो हम नेक्स्ट चैप्टर में आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।